Shri Bajpayee, and today I'm here with my next video of the story that is Old Man at the Bridge, written by Ernest Hemingway. So first we'll get to know something about the author of this poem. Ernest Miller Hemingway was an American novelist, short story writer, and a journalist whose simple and understated writing was a strong influence on the 17th century fiction. One of the shortest of Ernest Hemingway's short stories, Old Man at the Bridge, is based upon an incident that took place during an Easter Sunday stopover at the Ebro River while Hemingway was a war correspondent covering the Spanish Civil War. An old man with steel-rimmed spectacles and very dusty clothes sat by the side of the road. There was a pontoon bridge across the river, and the carts, trucks, and men and women and children were crossing it. The old man, he was sitting there. He was wearing steel-rimmed spectacles made up of steel, and he was wearing very dusty clothes. He was wearing मतलब वो बहुत ही गंदे कपड़े, एकदम मैले हुए कपड़े पहने था, और वो रोड के साइड पे बैठा था, और वहां पे ब्रिज था जिसका नाम था पॉन्टून ब्रिज, जो रिवर और कार्ट्स के बीच में था, और वहां से ट्रक्स और मतलब आदमी औरत बच्चे सब जा रहे थे. The mule-drawn carts staggered up the steep bank from the bridge, with soldiers helping push against the spokes of the wheels. जो mule-drawn carts थे, वो जो बैंक थी उस पर पूरे स्टैगर्ड हो गए थे, मतलब फैल गए थे, और वहां पे जो सोल्जर्स थे, वहां जो आर्मी मैन थे, वो हेल्प कर रहे थे. मतलब वो जो कार्ड्स थे वो एकदम पूरे हर बैंक में, पूरी रिवर बैंक में फैल गए थे, तो वो हेल्प कर रहे थे कि उसको कैसे वहां से निकाला जाए. The trucks ground up and away, heading out of वो अगेंस्ट द स्पोक्स ऑफ व्हील. जो कार होता है वो स्टैगर हो गया था, मतलब गिर गया था, तो हम लोग क्या कर रहे थे, अप स्लीप बैंक फ्रॉम द ब्रिज से हट गया था, तो वो लोग उसको पुश कर रहे थे अगेंस्ट द स्पोक्स ऑफ द व्हील, जो उसके व्हील्स थे, स्पोक्स थे, उसके अगेंस्ट, ताकि वो निकल जाए. The trucks ground up and away, heading out of it, all and peasants plodded along in the ankle-deep dust. But the old man sat there without moving. He was too tired to go in further. जो ओल्ड मैन था वो वहां बैठा रहा, उसको बिल्कुल भी कहीं उठकर जाने का मन नहीं. It was my business to cross the bridge, explore the bridgehead beyond, and find out to what point the enemy had advanced. I did this and returned over the bridge. These were not so many carts now, and very few people on foot, but the old man was still there. मतलब बोलता है कि स्पीकर बोलता है कि मेरा बिजनेस था कि सब लोग को वहां से, मतलब ये देखना कि ब्रिज के कितनी दूर जो शत्रु है वो लोग हैं, और सब देखकर मैं फिर से ब्रिज पे आ गई, और मैंने देखा कि कुछ कार्ड्स भी थे और कुछ लोग मतलब पैरों से चल के जा रहे थे, लेकिन जो ओल्ड मैन था वो वहीं पे बैठा.
तो उसने पूछा, जो सोल्जर है नॉट स्पीकर, उसका ये बिजनेस था कि वहाँ देखे कि वहाँ पे कौन से लोग उस जगह से उठकर पॉन्टून ब्रिज से हटकर मतलब सेफ जगह पर आ गए हैं। तो जो सोल्जर था उसने पूछा, वेयर डू यू कम फ्रॉम, ओल्ड मैन से, कि आप कहाँ से आए। आई आस्क्ड, फ्रॉम सैन कार्लोस, ही सेड एंड स्माइल्ड। तो उसने बोला कि फ्रॉम सैन कार्लोस, उसने बोला और वो हंस दिया। That was his native town, so it gave him pleasure to mention it and he smiled. कि आप जिस जगह से बिलोंग करते हो, अगर आपसे वो कोई पूछता है तो आप बहुत खुशी से उस जगह का नाम बताते हो। उसी तरह से वो उसका गांव था, उसका गांव नहीं कस्बा था सैन कार्लोस, तो उसको बहुत खुशी हुई वो किसी दूसरे को बता। I was taking care of animals, he explained. Oh, I said, not quite understanding. उसने कहा कि मैं एनिमल्स की केयर करता हूँ, और तो कोई जो सोल्जर था उन्होंने कहा कि अच्छा ओके फाइन. Yes, he said, I stayed, you see, taking care of animals. I was the last one to leave the town of the San Carlos. He did not like the shepherd nor a herdsman, and I looked at his black dusty clothes and his grey dusty face and his steel-rimmed spectacles and said, what animals were they? What animals were they? उसने कहा कि मतलब मैंने जब उन्हें देखा, ओल्ड मैन को, I stayed, you see, taking care of animals. उन्होंने कहा ओल्ड मैन ने कि मतलब मैं वहाँ पे रुका था, एनिमल्स की केयर कर रहा था, वहाँ मैं ही एक आखिरी बंदा था जो उस टाउन ऑफ सैन कार्लोस में था. तो उसने जो सोल्जर था जो पूछ रहा था उसने, उसको लगा कि ये मतलब कोई हर्ड्समैन, मतलब जो बकरी और ये सब सारे जानवरों की देखरेख करते हैं. तो सुना कि मुझे तो इसको देखकर नहीं ऐसा लग रहा है कि ये भाई मतलब इसका ये काम है, ओल्ड मैन का इनका ये काम है. और उन्होंने जब उनके मैले हुए कपड़ों को देखा और उनके कंधे से फेस को देखा, मतलब कंधा नहीं, मतलब उनका फेस पे भी धूल लगी थी, और उनके जो स्टील रिम्ड स्पेक्टिकल्स थे उन्हें देखा, तो फिर उन्होंने पूछा, अच्छा व्हाट एनिमल्स वर दे. सोल्जर ने पूछा, अच्छा कौन से एनिमल्स थे, कौन से जानवर थे. Various animals, he said and shook his head. I had to leave them. उन्होंने कहा कि बहुत सारे एनिमल्स थे, बहुत सारे जानवर थे, और उन्होंने ऐसे अपना शरीर पर बोल दिया. I was watching the rich and African-looking country of the Ebro Delta and wondering how long now it would be before we would see the enemy, and listening all the while for the first noises that would signal that ever mysterious event called contact, and the old man still sat there. उसने कहा जो सोल्जर वो पूरा ब्रिज वो देख रहे थे, और अफ्रीकन मतलब वो देख रहे थे अफ्रीकन लुकिंग कंट्री ऑफ इब्रो डेल्टा को, और वो सोच रहे थे कि मतलब कितनी देर होगी और कितना लंबा समय लगेगा जब हम एनिमीज को देख सके और उनके अगेंस्ट फाइट कर सके. और वो सिग्नल की आवाज मतलब सुनना चाहते थे. और वहां उन्होंने देखा कि वो ओल्ड मैन था जो वो वहां पे बैठे ही रहा उस समय तक ही. फिर से उन्होंने कहा, what animals were they? I asked. There were three animals altogether, he explained. There were 2 goats and a cat, and then there were 4 pairs of pigeons. 2 गोट थी, एक कैट थी, 4 pairs of pigeons. मतलब 8 pigeons थे टोटल, 2 goats थी, एक कैट.
And you had to leave them, I asked. Yes, because of the artillery. The captain told me to go because of the artillery. मुझे जाना पड़ा, मतलब वहाँ अटैक्स हो रहे थे, सिविल वॉर हो रहा था, इस वजह से कैप्टन जो था वहाँ का उसने बोला कि यू हैव टू गो, तो मुझे वापस जाना पड़ा। फिर वो बोलते हैं कि एंड यू हैव नो फैमिली। सोल्जर पूछते हैं इनसे, एंड यू हैव नो फैमिली, मतलब आपकी कोई फैमिली भी नहीं है। I asked, watching watching the far end of the bridge where uh, a few last carts were hurrying down the slope of the mountain. उन्होंने पूछा, watching the far end of the bridge, ब्रिज का फार एंड देखते हुए, लास्ट एंड देखते हुए उन्होंने देखा कि कुछ बहुत ही लास्ट कार्ड्स थे, बहुत ही कम कार्ड्स बचे थे जो जा रहे। कार्ड्स मतलब बैलगाड़ी, घोड़ागाड़ी। तो slope of the bank. No, he said, only the animals, I stated. The cat, of course, will be all right. A cat can look out for itself, but I cannot think what will become of others. उन्होंने ओल्ड मैन ने कहा कि हाँ, नहीं मेरी कोई फैमिली नहीं है, बस वो जो मैंने जानवर आपको बताए हैं वो ही मेरी फैमिली है, और मुझे लगता है कि जो कैट होगी, बिल्ली होगी, वो अपना ध्यान खुद रख लेगी, क्योंकि जो कैट्स होती हैं वो अपना ध्यान खुद रख सकती हैं, और बाकी और लोगों का और एनिमल्स के लिए मैं कुछ नहीं कह सकता कि वो कहाँ होंगे, अपना ध्यान रख पाए होंगे या नहीं रख पाए होंगे। तो वो बोलते हैं, What politics have you asked? मतलब जो सोल्जर है उन्हें लगता है कि जो ओल्ड मैन है वो कोई पॉलिटिक्स खेल रहा है उनके साथ, मतलब राजनीति बता रहा है कि एनिमल्स थे, ये था वो था। And without politics, he said, उन्होंने कहा कि नहीं, मैं कोई ऐसी बात नहीं है, पॉलिटिक्स कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। I'm 76 years old. I have come 12 kilometers now, and I think now I can go no further. This is not a good place to stop, I said. If you can make it, there are trucks up and the road where it forks for Tortosa. उन्होंने कहा कि कोई भी राजनीति नहीं कर रहा हूँ मैं, और मैं 76 साल का हूँ, 76 ईयर्स का हूँ, और मैं अपने टाउन से 12 किलोमीटर चल के यहाँ आया हूँ, और मुझे लगता है अब मैं और नहीं चल सकता हूँ। और तो जो सोल्जर है वो कहते हैं कि नहीं, ये सही जगह नहीं है रुकने की, आप ऐसे करिए, आप ट्रक्स है कुछ, ट्रक्स में चले जाइए जहाँ पे, और वो आपको टोटोसा तक छोड़ देंगे। तो जो ओल्ड मैन है वो कहता है, I will wait a while, he said, and then I will go. When do the trucks go? उन्होंने कहा, अच्छा मैं थोड़ा वेट करती हूँ, रुक जाता हूँ, और मैं चला जाऊँगा, और ये बताइए कि ट्रक्स कब आएंगे। Towards Barcelona, उन्होंने कहा, मतलब where do the trucks go? ट्रक्स कहाँ से जाते हैं? तो उन्होंने कहा towards Barcelona. I know no one in that direction, he said, but thank you very much, thank you again very much. उन्होंने कहा कि मैं तो किसी को जानता भी नहीं हूँ वहाँ पे, जो ओल्ड मैन थे, बट थैंक यू, उन्होंने उनको धन्यवाद दिया, मतलब क्योंकि सोल्जर ने उनकी हेल्प की, बताने में कि आप ऐसे जा सकते हो। He looked at me very blankly and tiredly, then said, having to share his worry with someone, the cat will be all right. I'm sure there is no need to unquiet about the cat, but the others. Now, what do you think about the others? उन्होंने कहा कि हाँ, कैट तो सही होगी, looked at it, and उन्होंने बोला कि हाँ, कैट तो सही होगी, और वो मतलब अपनी वरी शेयर की उन्होंने, मतलब बता रहे थे कि मैं बताना चाहती हूँ किसी को कि कैट तो सही होगी, और कैट के बारे में इतना मतलब
अशांत रहने की, इतना सोचने की जरूरत नहीं है। पर और जानवर का क्या होगा? Why they probably come through it all right. तो जो you think so? जो सोल्जर थे उन्होंने कहा कि नहीं वो सब भी ठीक होंगे। तो ओल्ड मैन जो था वो बोलता है कि अच्छा आपको ऐसा लगता है? Why not? I said, watching the far bank where now there were no carts. But what will they do under the artillery when I was told to leave because of the artillery? क्यों नहीं? मतलब जब मैं फार बैंक पे देख रहा था तो वहां कोई कार्ड्स ही नहीं थे, और वो लोग क्या करेंगे आर्टिलरी में, वॉर में वो करके, इंटरफेयर करके। उन्होंने कहा कि इसीलिए तो मुझे कहा गया था वहां से जाने के लिए आर्टिलरी की वजह से। Do you love the dove cage unlocked? I asked. तो उन्होंने कहा yes. तो उन्होंने पूछा कि अच्छा आपको लगता है अगर मतलब जो केज होता है, जो पिंजड़ा होता है डव का, वो अनलॉक हो जाए? तो कहते हैं हाँ। तो उन्होंने कहा then they'll fly. तो उड़ जाएंगे। Yes, certainly they'll fly, but the others, it's better not to think about the others, he said. तो उन्होंने कहा हाँ चलो वो तो फ्लाई कर जाएगी, वो तो उड़ जाएगी। तो उसने बोला कि अच्छा ऐसा करो कि और किसी के बारे में, मतलब और जानवरों के बारे में सोचने की जरूरत है नहीं, क्योंकि जब वो बचेंगे नहीं, मतलब आप क्यों सोच रहे हो फालतू में? जो बच रहा है उनके बारे में सोचो। If you are rested, I would go, I urged. Get up and try to walk. मैंने कहा सोचने में कि अच्छा अब आपका आराम हो गया हो तो आप उठिए और चलने की कोशिश करिए। Thank you, he said, and got to his feet, swayed from side to side, and then sat down backwards in the rest. तो उन्होंने कहा थैंक यू, और फिर वो खड़े हुए। फिर वो इधर मतलब जो डस्ट लगी हुई थी उनके कपड़ों में उसको ऐसे झाड़ा, और फिर बैठ गए वो डस्ट में। फिर क्या हुआ? I was taking care of animals, he said dully. I was taking care of animals, he said dully. मतलब डली मतलब बहुत डल तरीके से उन्होंने बोला, but no longer to me. I was only taking care of animals. फिर वो बताने लगे कि मैं एनिमल्स की केयर कर रहा था, ये वो। So there was nothing to do about him. It was Easter Sunday, and the fascists were advancing towards the Ebro. It was a grey, overcast day with a low ceiling for their planes, so their planes were not up. That and the fact that cats know how to look after themselves was all good luck that the old man would have. उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है उनके बारे में, सोचा नहीं था। ये ईस्टर संडे था और जो फासिस्ट थे वो ईब्रो की तरफ बढ़ रहे थे। फासिस्ट पीपल्स होते हैं, जैसे कम्युनिस्ट होता है वैसे फासिस्ट पीपल। वो एक ग्रे ओवरकास्ट डे था। और सबसे इस बात में फैक्ट क्या है कि जो कैट्स थी वो अपनी केयर खुद कर सकती थी। सबसे अच्छी बात यही है कि वो जो कैट्स थी वो अपनी केयर खुद कर सकती थी, और यही एक सबसे अच्छी बात थी, गुड लक था किसका? ओल्ड मैन का। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्टोरी ओल्ड मैन एट द ब्रिज। ब्रिज पे थे वो, पॉन्टून ब्रिज था, वहाँ पे सोल्जर आए, उनसे बात करी, उन्हें बताया कि ऐसे ऐसे आप यहाँ से जा सकते हैं। और वो अपने एनिमल्स की इतनी परवाह करते थे क्योंकि उनकी कोई फैमिली थी नहीं, तो वो एनिमल्स को ही अपनी फैमिली मानते थे। सो थैंक यू सो मच, and stay healthy, stay safe, and stay tuned. Bye. Meet you in the next one.